I have some treasure that I want to share with you. मेरे पास आज कुछ खजाना है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. All right. So Luke 6:45, a good man, say good man. एक भला मनुष्य, बोलिए भला मनुष्य. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है. Not the other way around. Not the one who does good is good. ऐसा नहीं कि जो अच्छा है वो अच्छा करता है. Okay, we'll see that. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह से निकलता है. Amen. You all can be seated, please. आप सब बैठ सकते हैं. But remember the two things. और दो बातें याद रखें. Okay. All right. So Jesus is saying that a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक भला व्यक्ति अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है. So what Jesus is saying is that our heart is like a treasure box. यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि हमारा दिल एक खजाने के भंडार के जैसा है. We store up things in our heart. हम अपने दिल में चीजें भर कर रखते हैं. If I can say in today's 21st century, our heart is like a hard drive. यदि मैं आज की भाषा में कहूँ तो 21वीं सदी की भाषा में कि हमारा हृदय एक हार्ड ड्राइव की तरह है. Okay, so for example, you have a computer, there's a hard drive, you can store images. जैसे कि कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव होती है जिसमें आप फोटोज ये सब संभाल कर रख सकते हैं. You can store movies. आप उसमें फिल्में रख सकते your हैं. office report. अपने ऑफिस का कामकाज. For example, there is 100 gigabytes hard disk you have. मान लीजिए कि एक 100 गीगाबाइट की एक हार्ड ड्राइव है जो आपके पास है. That's a limited storage. उसमें एक सीमा है जिसमें कि आप एक सीमा तक आप चीजें भर के रख सकते हैं. And what Jesus is saying is, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? that a heart is like that. कि एक हृदय भी ऐसा ही है. A heart is a storage space. कि हमारा दिल एक ऐसी जगह है जहां पर हम चीजें भर कर रख सकते हैं. And when it starts overflowing, it starts coming out from our mouth. और जब वो बातें वो चीजें जब हमारे मन में भर जाती हैं वही हमारे मुंह से निकलती हैं. Amen. All right. So for example, you went to a very rich man, a king. Let's take an example. आइए हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप मान लीजिए किसी राजा या किसी अमीर व्यक्ति के पास गए. And for example, see this as a treasure chest. उदाहरण के लिए आप इस बैग को एक खजाने का बक्सा समझें. Okay. So in old times, people would put their treasure. पुराने समय में लोग अपना जो खजाना था वो ऐसे बक्सों में रखा करते थे. Right. So for example, if you went to a rich man and you see a treasure chest, and you were given opportunity to open it, okay. और मान लीजिए आप किसी अमीर व्यक्ति के पास गए और आपको एक ये मौका मिला कि आप एक खजाने के बक्से को खोलें. So what would you expect? Come on, I want you to make some guesses. तो आप क्या आशा करेंगे कि उस खजाने के बक्से से क्या निकलेगा? Wow. बताइए. Gold. Okay. What else? और क्या? Diamonds. चांदी, हीरे, silver, जवाहरात, pearls. Okay, let us see what is here. देखते हैं इस बक्से में क्या है. Ready? तैयार है? It's a diaper. डायपर. I wanted to use a used one, but that would be gross. So, okay. So a diaper. All right. Okay. What else? Okay. धागा. Okay. All right. Okay. जूते. You know, actually, my team is surprising me. I have no idea what was in this box. और मुझे भी नहीं पता था कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या होगा. Okay. So
What a waste of storage, right? कितना बेकार का खजाना है जो संभाल के रखा हुआ है. Isn't that true? क्या ये सच बात नहीं? If there was a treasure box like this and if you found this, you will be very disappointed. यदि आपको पता चले कि एक खजाने का बक्सा है और उसके अंदर ये बेकार की चीजें हैं तो आप कहेंगे कितनी बेकार की फालतू की चीजें हैं. What a foolish man! कितना बेवकूफ व्यक्ति है. He has this expensive treasure chest and he has put trivial things. इस अमीर व्यक्ति के पास इतना बड़ा खजाने का बक्सा है और उसके अंदर इसने इतनी मामूली और बेकार की चीजें रखी हैं. You know what? आप जानते हैं क्या? We all are this person. हम सब यही अमीर व्यक्ति हैं. Because God has given us a heart. क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक हृदय दिया है. And majority of people waste their life getting obsessed with trivial things. और ज्यादातर लोग ऐसी मामूली सी बातों को अपने दिलों में रख करके बैठे रहते हैं. Oh, he didn't reply to my WhatsApp messages. ओह, उसने मेरे संदेश का कोई जवाब ही नहीं दिया. Oh, he didn't come to my son's wedding, so guess what? We are never inviting them again. मेरे बेटे की शादी में नहीं आया, मैं अब से उनको कभी नहीं बुलाऊंगा. What are we doing? हम क्या You are करें? filling the space of your heart with these things. क्या हम अपने दिल की उस जगह में, उस कीमती जगह में ये बेकार की बातें भर रहे हैं? Jesus said that a good man out of the good treasure, you decide what you will store in your heart. यीशु मसीह ने कहा एक भला व्यक्ति अपने भले भंडार से, आपको ये निर्णय लेना है कि आप अपने इस भंडार में कैसी वस्तुएं रखते हैं. Know this, that your heart does not have unlimited storage. आप ये बात समझ लें कि आपके दिल में अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है. Your heart is not YouTube. आपका हृदय YouTube नहीं है. Your heart has a limited storage. आपके दिल में एक सीमित जगह है. You can either fill it with bitterness and offense and judgment and criticism, or you can fill it with peace, joy, mercy, grace towards each other. या तो आप अपने हृदय में जलन, ईर्ष्या, बुराइयां ये रख सकते हैं, या फिर अपने दिल को आनंद, प्रेम और शांति से भर सकते हैं. You decide. आपको निर्णय लेना है. You know, so many people don't rise up in life and they always stay at the base because all their life, if you see what they talk about, it's of no value. आप देखेंगे ज्यादातर लोग हमेशा बिल्कुल सतह पर रहते हैं, कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं उठते, इसीलिए क्योंकि वो अपने हृदय में यही बेकार की बातें रखते हैं और अपने दिल को उन्होंने नाराजगियों और बुरी बातों से भरा हुआ है. So for example, I have a phone. उदाहरण के लिए मेरे पास एक फोन We all have a phone these हम days. सबके पास फोन है. And for example, there's a song. You stored a song. और मान लीजिए कि आपने इस फोन में एक गाना रखा है. You can listen it one time, two times, thousand of times. आप उसको एक बार, दो बार, 1000 बार सुन सकते हैं. But what happens when you want to listen to a song that is not stored on your phone? And your phone's memory is full. लेकिन क्या होगा जब आप कोई और गीत सुनना चाहते हैं और वो आपके फोन में नहीं, और आपके फोन की जो मेमोरी है वो पूरी भर चुकी है. We all have gone through that, right? Our phone storage space is full. हम सब ने ये देखा है कि हमारे फोन में जो सीमित करने की जो जगह है, जो बचाने की, सेव करने की जो जगह है, वो पूरी भर चुकी हो. And no more messages can come in. और कोई संदेश नहीं आ सकता. Because our phone storage is full. क्योंकि फोन की जो स्टोरेज है, जितना उसमें भरा जा सकता है, वो पूरा भर चुका है. And if you want to receive a new message, और यदि आपको एक नया संदेश देखना है, you will have to delete the old. तो आपको पुराने संदेश हटाने पड़ेंगे. If you want to hear the fresh word from the Lord, you will have to delete what you have been carrying in your heart for 20 years, for 30 years, for 40 years. और यदि आप परमेश्वर से आज एक नए वचन को सुनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन से वो बुरी बातें जो आपने 20, 30, 40 सालों से संभाल कर रखी हैं, उनको हटाना पड़ेगा. Because if you don't delete it, you will be singing the same song all your life. क्योंकि यदि आप उस संदेशों को मिटाते नहीं, तो आप उसी पुराने गाने को सालों सालों तक गाते रहेंगे. Isn't that amazing that some people can talk about that betrayal for 20 years? कितनी अद्भुत बात है कि लोग अपने एक
20-30 साल पहले खाए हुए धोखे के बारे में आज भी बात कर सकते हैं। Oh brother, you don't know what I went through. ओ भाई, तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। It's like scratching that wound, you're not letting it heal. ये ऐसा है जैसे कि आप अपनी चोट पर खुद ही खुजली करे जा रहे हैं और उसको समय नहीं दे रहे कि वो ठीक हो। If that thing which happened 10 years ago, 20 years ago, 5 years ago, if it's still paining you, that means you have not allowed the Holy Spirit to heal you. यदि आज आपके एक किसी घाव को, किसी नाराजगी को 20, 30, 5 कितना भी साल हो गए और आपको आज भी वो बात चुभती है, इसका मतलब कि आपने पवित्र आत्मा को ये अनुमति नहीं दी कि वो आपको चंगाई दे सके। Come on church, are you with me? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Don't keep scratching that wound. अपने उस घाव को बार बार खुरचिए मत। Amen. So many people are not able to hear God's voice because their heart is so full of judgment and bitterness and offense. बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, इसीलिए क्योंकि उनके मन में इतनी ईर्ष्या, इतना वो लोग को न्याय करते हैं और इतनी नाराजगियां हैं। Because God does not speak to your ears like He doesn't speak in audible voice. God speaks to your heart. क्योंकि परमेश्वर आपसे आपके इन कानों से बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके हृदय से बात कर रहा है। Oh pastor, I've tried. No matter what I do, I'm not able to believe the word of God. I guess your hard drive is full. ओ पास्टर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा वचन को, क्यों नहीं सुन पा रहा प्रभु को। मैं आपसे कहूंगा क्योंकि आपकी हार्ड ड्राइव पूरी भर चुकी है। There's some stuff that needs to be deleted. आपके हृदय में बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी नाराजगियां हैं जिनको हटना जरूरी है। Shift and delete. If the people know what I'm saying, shift and delete deletes it permanently. जैसे कि कंप्यूटर में होता है, जब हम शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं, इसका मतलब है पूरी तरीके से परमानेंटली, हमेशा के लिए उसका खात्मा हो जाना, खत्म हो जाना। ऐसे ही हमारे हृदय में से ऐसी बहुत सी बातों को हमेशा के लिए मिटाना है। Otherwise it goes to recycle bin and you can restore it. वरना वो बस थोड़े समय के लिए एक दूसरी जगह चली जाती है और आप उनको वापस ला सकते हैं। And that's what many people do. Jesus, I forgive this person. Lord, I cast all my cares to you. और ऐसा है जो कई लोग करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह, मैं इस व्यक्ति को माफ करता हूं और अपनी सारी चिंताएं आप पर डालता हूं। And he said, Jesus, I think it's too much for you. Let me take them back. और लगता है यीशु मसीह आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया, मुझे थोड़ा वापस लेने दो। So we are like playing, ping pong with Jesus. You're giving him your worries and then you take them back, and then you give him your worries and you take them back. और ये ऐसा है जैसे कि हम प्रभु के साथ कोई गेम खेल रहे हो, जिसमें हम उसको चिंताएं देते हैं, फिर उससे वापस ले लेते हैं, देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। No, come on, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी की ओर देखें और बोलें, पड़ोसी, it's time to delete some stuff. समय आ गया है कि हम अपने दिल से बेकार की बातों को हमेशा के लिए मिटा दें। Amen. Amen. God says in His Word, "Behold, I am about to do a new thing in your life." परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने पर हूं। But there's a condition. लेकिन एक शर्त He है। says, "Before I do a new thing, वो कहता है इससे पहले कि मैं एक नई बात करूं, you will have to forget the former things." ये जरूरी है कि तुम पिछली बातें भूल जाओ। Because if you are stuck in the old pattern, you will never be able to recognize and enjoy the new that God will do in your life. क्योंकि यदि तुम आज भी अपने उस पुरानी जगह पर अटके हुए हो, पुरानी बातों पर अटके हुए हो, तो वो नई बातों को ना तुम कभी आनंद ले पाओगे, ना समझ पाओगे। Can I tell you why so many Christians don't walk in victory? जानते हैं क्यों बहुत से विश्वासी जय में नहीं चल पाते? Because they are stuck in the wrong covenant. क्योंकि वो एक गलत वाचा में बंधे हुए हैं। Many believers are standing on the wrong side of the cross. बहुत से विश्वासी क्रूस की गलत जगह पर खड़े हुए हैं। So they want to be Moses and Elijah and whatnot. और वो मूसा और इलाइजा बनना चाहते हैं। Come on, say change your covenant. बोलिए अपनी वाचा को बदलो। I am in a new covenant with new and better promises. मैं एक नई वाचा में हूं जहां पर पहले से बेहतर और अच्छे वायदे हैं। Amen. You cannot have new and old together. आप नया और पुराना दोनों साथ में नहीं रख सकते। Either be in old or be in new. या तो पुराने में रहिए या फिर नए में। Behold, I am about to do a new thing in your life. देखो, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने पर हूं। And it says it will happen quickly. और वो कहता है कि ये अचानक से होगा। See, God says, I will do a new thing. That's His job.
प्रभु ने कहा कि मैं एक नया काम करूंगा, वो प्रभु का काम है And he करना। says, you do not remember the old things, that's your job. और उसने कहा कि तुम पुरानी बातों पर ध्यान न दो, वो आपका काम है करना। And God is perfect in his job. और प्रभु अपना काम करने में एकदम सिद्ध है। But the problem is we keep thinking about the old patterns. लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपनी पुरानी बातों पर और पुराने तरीकों पर ध्यान लगाते हैं। Oh, this is always how we have done things. ओ, हमेशा से हम ऐसा ही तो करते आए हैं। I was sharing with my leadership. Do you know what are the 7 words of a dying church? Dying church. और मैं अपने अगुओं से बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि जानते हैं वो 7 शब्द क्या हैं जो एक मरती हुई कलीसिया के हैं। The 7 words of a dying church are, we have never done this way before. हम और वो 7 शब्द जो हैं जो एक मरती हुई कलीसिया के हैं वो हैं कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया। When God wants to do something new in your life, जब प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है, we are so comfortable in the old patterns. हम पुरानी तरीकों में ही आराम में हैं। Say new. बोलिए नया। 2022, 2022 there is new. सब कुछ नया है। New grace, new mercy, new compassion. Amen. नया अनुग्रह, नई दया। So don't compare it with 2021. तो 2022 को 2021 के साथ उसकी तुलना ना करें। 2021 is gone. 2021 चला गया। We are in a new year हम नए साल में हैं, with new grace. नए अनुग्रह के साथ। Amen. Amen. All right. Okay, so let's see the scripture, Proverbs chapter 4 verses 23. नीति वचन 4:23 को हम देखेंगे। I'm reading from the Amplified Classic version. मैं इसे एम्प्लीफाइड अनुवाद से पढ़ रहा हूं। Keep and guard your heart. अपने हृदय को संभाल कर रख। Keep and guard your heart with all vigilance, सबसे- and above all that you guard. सबसे अधिक किसी भी और बात से ऊपर अपने मन की रक्षा कर उसे संभाल कर For रख, out of it flows the springs of life. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। We guard so many things, हम बहुत सी चीजों की रक्षा करते हैं। right? You guard your house. आप अपने घर की रखवाली Every करते night हैं। you make sure is the main door locked. आप हर रात देखते हैं कि जो मुख्य दरवाजा है वो पूरी तरीके से बंद है कि For नहीं। those people who have a car, you lock the car and then you check it 10 times. Is the door और locked? जिन लोगों के पास कार है वो जानते हैं, वो पहले लॉक करते हैं और फिर 10 बार उसका दरवाजा खोलकर देखते And हैं then you बंद हो go गई। and then you remember, maybe I'm not locked. And you go back and then you check again. और फिर जब वो जाते हैं उनको कहते हैं अरे लगता है शायद ढंग से बंद नहीं हुआ, फिर जाते हैं, फिर खोल के देखते हैं कि बंद है कि नहीं। Right? सही बात। Because you're guarding your car. इसीलिए क्योंकि आप अपनी कार की रक्षा If you करें। have bike, then people have these locks that go inside the tires and they lock it. और जिन लोगों के पास बाइक है वो जानते हैं उनके पास चेनें होती हैं, वो टायर के अंदर उसको लगाते हैं, उस पर लॉक लगाते हैं। For those people with a lot of gold, they go to bank and say, give us a locker. वो लोग जिनके पास बहुत सोना है वो बैंक में जाकर के लॉकर लेते हैं कि हमारा सोना छुपा दो। Why? क्यों? We are so mindful that we want to guard the things that are of value to us. क्यों? क्योंकि हम इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं कि जो भी चीज हमारे लिए कीमती है हम उसकी रक्षा करें। Amen? Amen. Are you with me? क्या आप समझ रहे But the हैं? Bible is saying, बाइबल यहाँ कह रही है guard your heart above all that you guard. अपनी हर एक बात जिसकी आप रक्षा करते हैं, हर एक चीज की सबसे ऊपर अपने हृदय की रक्षा करो, उसे संभाल कर रखो। So more than you guard your house, इससे ज्यादा कि आप अपने घर की सुरक्षा करें, God is saying, guard your heart. प्रभु कह रहा है कि अपने हृदय को सुरक्षित रख। Your heart is more valuable than your house. आपका दिल आपके घर से ज्यादा कीमती है। If you got a new car and somebody scratched it, you're going to feel that scratch in all your being. यदि आपकी नई कार पर कोई स्क्रैच मार दे तो आपको स्क्रैच आपकी कार से ज्यादा आपके दिल पे लगेगा, आपके दिल पे छुरियां चल जाएंगी। And then as long as you see that scratch, you're like, man, my car does not look good. I have to do something about this scratch. I'll take it to the workshop. I'll get it repaired. और जब तक आप अपनी उस कार में वो स्क्रैच देखेंगे, आप कहेंगे, आपको कुछ होता रहेगा, आप कहेंगे मुझे इसको लेकर जाना है, इसको ठीक कराना है, बस ये स्क्रैच हटाना है।
But so many of us are carrying dents and scratches in our heart for years and we don't want to do anything about it. लेकिन हम में से बहुत से लोग अपने दिल में इतने स्क्रैचेस, इतने डेंट, इतनी बुराइयां लेकर घूम रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं करना चाहते. A car is of no value compared to your heart. एक कार का आपके हृदय के सामने कोई मूल्य नहीं है. Amen? Amen. It's just a tin box, steel box, whatever you want to call it. वो तो सिर्फ एक टीन का डब्बा है. But the Bible says, above all that you guard, guard your heart because all the issues of your life spring forth from it. लेकिन बाइबल हमें यहाँ बताती है कि सबसे अधिक हर एक चीज से ज्यादा अपने हृदय की तू रक्षा कर, उसको सुरक्षित रख, क्योंकि इसी मन से इसी हृदय से जीवन की सारी बातें निकलती हैं. Amen. Amen. You know, so nowadays when people buy car, they put this PPF sheets, you know, paint protection films. अब जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक PPF फिल्म आती है जो सारे स्क्रैचेस और डेंट से उनको बचाती है, वो लगाते हैं. I think it's easy to raise a dead in Delhi than to have a car with no scratch. It's easy to walk in miracles than to have a car in Delhi without a scratch. चमत्कारों में चलना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आपकी एक कार हो और उसमें डेंट ना हो. So in your car, you know, they have this now, a sheet. They cover your car so that even if there's a scratch, it will not come on the car. It will just be on the sheet. तो अब क्या हुआ है कि कारों पर एक ऐसी शीट लग गई है कि यदि कोई स्क्रैच भी लगे तो वो आपकी कार पर नहीं लेकिन उस शीट पर लगे. And everybody's getting it. I got it. और हर किसी के पास है, मेरी कार पे भी लगा है. Amen? Amen. But in the same way, लेकिन उसी तरीके से there is an invisible sheet एक ना दिखने वाली एक ऐसी परत है which can cover your heart. जो कि आपके हृदय पर लगी हुई. So when people come and they try to scratch you, ताकि जब लोग आए और आपके दिल को खुरचने की कोशिश करें, it will not enter your heart. तो वो आपके हृदय में ना जाए, And that हृदय को ना लगे. sheet और वो जो परत है is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन. David says, दाऊद कहता है, because I love your law, I will not be offended. क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से प्रेम करता हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ. Can I tell you, people who love the word are not easily offended. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं उनको नाराज करना बहुत ही मुश्किल है. Because their heart is full of the word. क्योंकि उनका जो हृदय है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है. Their heart is not filled with उसने ये बोला, इस दिन ये बोला, वो बोला. उनका हृदय इन बातों से नहीं भरा that he said me something, he said that and he said this. You know, somebody comes to me and they say, कोई मेरे पास आता है और कहता है, are you upset with me? क्या आप मेरे से नाराज हैं? I said, why do you say that? मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? Because they say, that day क्योंकि वो कहते हैं you looked towards उस me दिन and then you started looking somewhere else. आपने मेरी ओर देखा और फिर आप कहीं और देखने लगे. I was like, I don't even remember such a day. और मैंने कहा मुझे तो ऐसा कोई दिन भी नहीं याद. And और I will never fill my heart with these things. और मैं अपने हृदय को कभी इन बातों से भरूंगा भी नहीं. Amen. Amen. I delight in your word so that I will not be offended. मेरा मन तेरी बातों से, तेरे वचन से खुश है और मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा. If you keep getting offended at meaningless things, increase the dose of the word of God. यदि आप बेकार की बातों पर नाराज हुए जा रहे हैं तो समय आ गया है कि आप परमेश्वर के वचन को और ज्यादा अपने दिल में उतार लें. That means your hard drive is filled with stuff which won't let you rise above the others. इसका मतलब आपके हृदय में वो सब बातें भरी हैं जो आपको कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं जाने देगा. Amen? Amen. See, that's why when 3-4 people gather and if all they do is gossip, you know what they lack? They lack a purpose in life. इसीलिए यदि 3-4 लोग आपस में मिलते हैं और बेफिजूल की बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो इसका मतलब कि उनके जीवन में उनका जीवन का मकसद उनको नहीं पता कि क्या है.
But if your heart is infected with the love for the kingdom, you will be so focused. God, how can I be a blessing to somebody else? Lord, how can I expand your kingdom on the earth? लेकिन यदि आपका दिल हमेशा परमेश्वर के वचन और उसके राज्य की बातों से भरा है, तो आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि मैं औरों के लिए कैसे एक आशीष का कारण बनूं और कैसे परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाऊं. Amen. Amen. So let's stop getting offended at these things. तो आइए हम इन बेकार की बातों पर नाराज होना बंद कर दें. Bible says, बाइबल बताती है, pursue peace and holiness, without which no one will see the Lord. So we always talk about holiness, but so many times we don't talk about peace. बाइबल बताती है कि पवित्रता और शांति के पीछे चलो, जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता. हम लोग पवित्रता के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन कोई शांति के बारे में बात नहीं करता. You know, there is a leader in Delhi, and I don't know why, but that leader was very upset with me. I don't know for what reason. और दिल्ली में एक परमेश्वर के एक जन हैं और वो मुझसे ना जाने किस बात पर बहुत नाराज थे. So we were in an event. हम एक सभा में थे. And he looked towards me. और उन्होंने मेरी ओर देखा. He was coming towards me. वो मेरे पास आ रहे थे. And he turned and he started going that way. और वो मुड़े और फिर दूसरी तरफ चलने लग गए. You know what I did? आप जानते हैं मैंने क्या किया? No, this is not what I did. मैंने ऐसा नहीं किया. I ran there and I came in front of him and I hugged him and I said, "How are you doing?" मैं दूसरे रास्ते गया, उनके सामने आ गया, उनको गले से लगाया और बोला, भाई आप कैसे हैं? Rejecting me is his own will. I will not do that. I want to love on him. मुझे ठुकराना ये उनकी इच्छा थी, लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं थी. मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं उनको और उनसे प्रेम करूं. Amen. Amen. So what? If people will turn their face, you go and hug them. तो क्या हुआ अगर लोगों ने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया? आप जाएं और आप प्रेम दिखाएं, आप उनको गले से लगा लें. Amen. Amen. That's why there are thousands of cold wars going inside churches and nobody knows of the reason. इसीलिए कलीसियाओं में बहुत से कोल्ड वॉर होते रहते हैं और किसी को पता ही नहीं कि क्यों हो रहे हैं. So somebody thought that you ignored them, they stopped talking to you, then you stopped talking to them, and you have not spoken for years, and then one day you met, and then you are like, what happened? And nobody knows what happened. और किसी ने आपको लगा कि उसने मुझे नजरअंदाज करा, उसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने बात करनी बंद कर दी, उस व्यक्ति ने भी बात करना बंद कर दी, और ऐसे ही कोल्ड वॉर चलता रहा. Guard your अपने मन की, हृदय की सुरक्षा करें. The people वो लोग who rise up in kingdom, जो राज्य में ऊंचाइयों को छूते हैं, they are those who make sure that they will fill their heart with the word, with what God says about them and what God says about their brothers and sisters. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है और इन बातों से भरा हुआ है कि परमेश्वर मेरे बारे में, अपने बारे में और उसके लोगों के बारे में क्या कहता है. Amen. See, Jesus said, if you only greet those who greet you, then even he said, the people in the world do the same thing. यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम सिर्फ उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं. But he said, if those people who hate you and you can pursue and you can bless them in your prayers and you can make a decision that I will never harbor bitterness in my heart, that's a decision that you will have to make. लेकिन यीशु ने कहा, वो लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, और हम अपने मन में ये निर्णय लें कि हम उनसे वापस नफरत नहीं करेंगे, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में उनको आशीषित करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि हम उनसे प्रेम करेंगे, तो ये राज्य के लोग हैं. You know what happens, for people who are working in laptops, there are viruses that keep coming up and they infect your hard drive, and so many times a tiny virus can destroy the entire hard drive. वो लोग जो लैपटॉप पे काम करते हैं वो जानते हैं कि ऐसे बहुत से वायरस होते हैं जो लैपटॉप में आ जाते हैं, और एक छोटा से छोटा वायरस भी आपकी हार्ड ड्राइव को खराब कर सकता है. Amen.
And I don't know how long this series will go, but we'll be talking about many things. But today I want to talk about mainly one thing that has infected all of our hearts, and that is condemnation. और मुझे नहीं पता कि ये शिक्षा कितनी लंबी चलेगी, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो बात जिसने हमारे हृदयों पर बहुत प्रभाव डाला है, वो है दोष लगाना। We all have messed up sometime in our life. हम सब ने अपने जीवन में कई बार बहुत सी गलतियां करी हैं। Is there anyone here who can say I have never messed up in my life? क्या यहाँ पर कोई है जो अपना हाथ खड़ा कर ये बोल सकता है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करी? Right? We all are guilty of that. हम सब ने कुछ ना कुछ गलत We किया still है। make mistakes. हम आज भी बहुत सी गलतियां करते हैं। And when we do that, और जब हम the ऐसा Bible करते हैं, says Satan, who is called the accuser of brethren, stands to accuse us day and night. बाइबल बताती है कि जब ऐसा होता है तो शैतान जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है वो खड़ा हो दिन रात हम पर दोष लगाता है। And this condemnation is like a virus. और ये दोष भाव जो है ये एक वायरस की तरह है। And when we hear the voice of the enemy and we start seeing ourselves as the picture that he is showing us, और जब हम उस शैतान की आवाज को सुनने लगते हैं और अपने आप को वैसे देखते हैं जैसा कि शैतान हमें दिखा रहा है, somehow we start believing that God did a mistake by choosing me. और I don't know about you, I've felt that. God, why did you call me into ministry? I don't feel deserved at all. और कई बार और ज्यादातर हमें वो ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां पर हम ये सोचने लगते हैं कि प्रभु तूने मुझे क्यों चुना, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सेवकाई के लिए सही व्यक्ति हूं। Lord, if I would have been you, I would have never chosen me. प्रभु यदि मैं तेरी जगह होता तो मैं अपने आप को कभी ना चुनता। And we start believing the image that he shows us, और हम उस छवि पर, उस तस्वीर पर विश्वास करने लगते हैं जो शैतान हमें दिखाता है, rather than what our heavenly Father says about us. बजाय इसके कि हम इस बात पर विश्वास करें कि जो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में कहता है वो क्या है। We have somehow believed that until we become perfect in our performance, we will not get the approval of God. हमें ये लगता है कि जब तक कि हम अपने काम में सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हमें परमेश्वर की ओर से एक सहमति नहीं मिलेगी। And somehow we have mixed performance with identity. और हमने कहीं ना कहीं अपनी पहचान को हमारे काम करने के तरीके से उस सिद्धता के साथ हमने मिला दिया है। Amen? Performance is what you do. Identity is who you are. आपका जो काम है वो कुछ ऐसा है जो आप करते हैं, और आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी असलियत है, जो आपकी पहचान है, वो है जो आप हैं। What I do does not define who I am. जो मैं करता हूं उससे मेरी पहचान पर फर्क नहीं पड़ता। Amen? When God created man, जब परमेश्वर ने आदम की रचना करी, before man could have done any good work, God said, it is good. इससे पहले कि मनुष्य कुछ भी करता, परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और कहा ये भला है। Amen? Amen. Before Jesus could have done any miracle, इससे पहले कि यीशु मसीह कोई भी चमत्कार opened करता, any blind eyes, कोई भी अंधों की आंखों raised को any खोलता, dead, किसी भी मरे हुए को जिलाता, even preached any sermon, कोई संदेश का प्रचार नहीं किया, the Father said, this is my beloved Son in whom I am well pleased. पिता ने स्वर्ग से ये कहा कि ये मेरा स्वर्गीय पिता, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति आनंदित हूँ। Amen, church? Amen. My worth मेरी कीमत does not come from what I do. इस बात से नहीं आती कि मैं क्या करता हूँ। I'm not precious because I'm leading this church. मैं इसीलिए कीमती नहीं हूँ क्योंकि मैं इस कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूँ। If tomorrow I will not be leading this church, I'll be as precious as I am. यदि मैं कल को इस कलीसिया की अगुवाई ना भी करूं तो भी मैं उतना ही कीमती हूं। You're not precious because you drive a nice fancy car.
आप इसीलिए कीमती नहीं हैं क्योंकि आप एक बड़ी कार चलाते हैं. Or there are these fancy titles, CEO and VP or director in front of your name. और इसीलिए कीमती नहीं है क्योंकि आपके नाम के आगे कोई बड़ी टाइटल लगते हैं जैसे कि CEO या VP. Come on, church. Are you alive? क्या आप जीवित हैं? My worth does not come from what I do. My worth comes from my birth. मेरी कीमत उससे नहीं है कि मैं क्या करता हूं, लेकिन मेरी कीमत इससे है कि मैं किससे जन्मा हूं. Amen. The day a son and a daughter is born in king's house, they are royalty. जिस दिन राजा के घर एक बेटा और बेटी पैदा होते हैं वो उस राजा के हैं, उस राज घराने के हैं. They are precious. वो कीमती हैं. What did they do that time? क्या किया उन्होंने उस समय? They poop, they fart, they burp. उन्होंने पोटी करी, डकारे मारी. But they are still royalty. लेकिन फिर भी वो राज घराने के हैं. Oh God, I mess up. Yes, you mess up, but you are still a royalty. ओ प्रभु मुझसे गलती हो गई. हाँ आपसे गलती हो गई लेकिन फिर भी आप राज घराने के हैं. Amen. Amen. And that's what the enemy does not want us to know. और यही बात है जो शैतान नहीं चाहता कि हम जाने. We are constantly trying to appease God as if He needs to be appeased. और हम हर समय बस परमेश्वर को मनाने में लग जाते हैं जैसे कि जरूरत है या जरूरी है कि हम उसको मनाएं. Fix your identity, your performance will follow it. आप अपनी पहचान पर अपना ध्यान लगाएं. आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका कार्य है, वो आपके पीछे पीछे सिद्धता से चलेगा. Amen. So many of us are trying to fix our performance. बहुत से लोग हम में से बहुत से लोग अपने काम को हम किस तरीके से कर रहे हैं, अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, इसी बात पर We think when I will do good, then I'll be good. हमें लगता है कि जब हम अच्छा करेंगे तब हम अच्छे होंगे. That's not the way your heavenly Father sees it. लेकिन स्वर्गीय पिता ऐसे नहीं देखता. He sees you as a son. He sees you as a daughter. वो आपको एक बेटा और एक बेटी की तरह देखता है. Can I tell you one thing? क्या मैं आपको एक बात बता दूं? Once a son, always a son. एक बार जो बेटा बन गया वो हमेशा के लिए बेटा है. Once a daughter, always a daughter. जो एक बार उसकी बेटी बन गई वो हमेशा के लिए बेटी है. Amen. And many of us, we are like that prodigal son. Sometimes when you mess up, और हम में से बहुत से लोग उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हैं. हम में से कई बार जब हम लोग गलतियां कर देते हैं, and can I tell you, you will mess up. और मैं आपको बता दूं ऐसा होगा, आप गलतियां करेंगे. You will mess up. आप लोग गलतियां करेंगे. That's why we can never stand behind our own works. इसीलिए हम कभी भी अपने कर्मों के पीछे नहीं खड़े हो सकते. Because no matter how many hours you pray, no matter how many hours you fast, someday, somehow, you're going to mess up. क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे प्रार्थना और उपवास करें और वचन पढ़ें, लेकिन कभी ना कभी कैसे ना कैसे हम सबसे गलतियां होंगी. Oh, you are in the church, you're having the most amazing anointed vision. आप कलीसिया में हैं और आपको इस समय बड़ा ही अद्भुत दर्शन आप देख रहे हैं. You are seeing the third heavens. आप देख रहे हैं कि बस तीसरा स्वर्ग खुल गया. And then you are driving your car. और फिर आप अपनी कार चलाएं. In Delhi traffic. दिल्ली के ट्रैफिक में. And then somebody overtakes you. और फिर एकदम आपके आगे एकदम तेजी से धूम मचाते हुए कोई आगे निकल जाए. And hallelujah. और फिर हालेलुया. And the moment you make a mistake, the enemy is like, see, I told you, you're not good enough. You're not good enough. और जैसे ही आपसे कोई गलती होती है, शैतान आता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना, इतना अच्छा भी नहीं है तू. And if Satan, और यदि the work that Satan is not able to do, your relatives will fulfill it.
और यदि शैतान जो बोलना चाह रहा है, यदि उससे उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आपके रिश्तेदार उन बातों को पूरा। अरे ये तो कहते हैं ये लोग प्रभु के लोग हैं। These people say that we belong to the Lord. अरे हाँ, हम प्रभु के लोग हैं, इसीलिए प्रभु की धार्मिकता के पीछे खड़े हैं। Yes, Amen? yes, we are people of the Lord. That's why we stand behind the righteousness of our Lord. Amen. Amen. Nobody is declaring that we are perfect. कोई भी इस बात को नहीं बोल रहा कि हम सिद्ध लोग हैं। We are not perfect. We are perfected. हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं, हम लोग सिद्ध किए हुए लोग हैं। If anybody asks you, are you perfect? यदि कोई आपसे पूछे क्या आप सिद्ध हो, Say, I'm not perfect. बोलिए मैं सिद्ध नहीं हूँ, I am perfected. मुझे सिद्ध घोषित किया गया है, मुझे सिद्ध किया गया है। Amen. My heavenly Father sees me without flaws. मेरा स्वर्गीय पिता मुझे बिना किसी कमी के देखता है। I am perfect in His sight. I don't need to be perfect in your sight. मुझे आप सबकी आंखों में, आप सबकी नजरों में सिद्ध होने की जरूरत नहीं, अपने स्वर्गीय पिता की नजरों में मैं बिल्कुल सिद्ध हूँ। Amen. Let me tell you a story about my friend. Real story, okay? मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ अपने दोस्त के बारे में। So, my friend, he was born at a time where his parents were, in their olden years. और मेरा जो ये दोस्त है, इसका जब जन्म हुआ तो उसके माता पिता अपनी काफी उम्र में थे। So he was like a beloved son, pampered. तो वो एक बहुत ही प्रिय बेटा था जिसको बहुत नाजों से पाला था। Over pampered. माँ का लाडला था वो, But very naughty. लेकिन बड़ा शरारती। So I still remember he was sharing this. और मुझे आज भी याद है जब वो मुझसे ये बांट रहा था। So he would do all the notorious stuff in the neighborhood. तो वो आस पड़ोस में बहुत शरारतें करता था। And then these aunties would come. और फिर ये आंटी सारी आती थी। I don't know why so many of you are laughing. Okay. Yeah, but these aunties would come to my friend's home to talk to his father. और ये सारी आंटीज जो थी वो मेरे दोस्त के घर में आती थी उसके पापा से बात करने। And they used to say, your son is like this, your son is this, your son is this, your son is this. और वो आती थी और कहती थी तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है। And then they would go. और फिर वो चले जाते थे। And his dad would say to his mom. और फिर उसके पिता उनकी माँ से कहते थे, अपनी बीवी से कहते थे। He would say, वो कहते थे मुझे सुनना ही नहीं है। I don't want to listen. जो बोलना है बोलने दो। Let them say whatever they want to. वो मेरा बेटा है। He's my son. When the enemy stands and says, God, he did this and he's like this and he's like this, the father says, मैं सुनना ही नहीं। जब शैतान परमेश्वर के आगे खड़ा होकर बोलता है कि ये तेरा बेटा, इसने ऐसे किया है, इसने वैसा किया है, ये ऐसा है और वैसा है, प्रभु कहता है I don't want to listen. Hallelujah. He is my son, she is my daughter, and they are precious in my sight. ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और मेरी नजरों में ये कीमती है। Amen. Amen. God doesn't take his counsel from Satan. Neither he takes opinions from Satan. God has his opinion about you, and can I tell you a good news? Nothing can change God's opinion about you. परमेश्वर कभी भी शैतान से या किसी भी और से सलाह मशवरा नहीं करता। उसका आपके बारे में जो विचार है वो कभी नहीं बदलता। Amen. Amen. See, when I became a dad, and जब मैं एक पिता बना, and me and Monica, we were blessed with 2 daughters, Eliana and Amaya. और मैं और मेरी पत्नी मोनिका, हमारी 2 बेटियां हैं। And the day they were born, और जिस दिन उनका जन्म हुआ, they carry my name. उनके पास मेरा नाम है। They are Sajwan, उनके नाम के आगे सजवान लगता है and it will always be. और हमेशा रहेगा। And no matter what they do, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी करें, won't change their who. उससे ये नहीं बदलेगा कि वो किसके हैं, वो कौन है।
Amen? Amen. No matter what you do is not going to change your who. फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करें, लेकिन आप उस राजा के हैं, ये कोई नहीं बदल Now, सकता। am I saying that go out and be stupid? No. क्या मैं ये कह रहा हूं कि बाहर जाएं और बेवकूफियां करें? नहीं। Sin has its consequences. हर पाप का अपना एक नतीजा है, एक इल्जाम। But sin does not define you, Son defines you. लेकिन पाप से आपकी पहचान नहीं है, पाप से आपको आपकी पहचान नहीं मिलती। उस पुत्र ने जो आपको पहचान दी है, वो आपकी असली पहचान है। Amen? Amen. Oh man, I pray that you'll get it. मेरी ये प्रार्थना है कि आप इस बात को समझ जाएं। Because the greatest weapon that the enemy has is condemnation. क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो शैतान के पास है वो है दोष लगाना। Anybody remembers that game? What do we call it? I Spice or Dhappa, you know, whatever. आप Yeah? सबको याद है What is वो Dhappa? गेम जो हम देखते Dhappa, थे? okay. I So this Spy, guy is hiding hide and seek, and then he says, लुक्का छुपी। Dhappa! और ये व्यक्ति छुपा हुआ होता है और जैसे ही डैन को देखता है कहता है धप्पा। And then many times we are like, we are praying, we are fasting, we are trying to please God, and then we mess up once and Satan comes, Dhappa! और कई बार ऐसा होता है कि हम खूब प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और फिर हमसे कोई गलती हो गई और शैतान उसी धप्पा की तरह हमारे सामने आ जाता है। Yeah, you can say Dafa. जब वो करे धप्पा, आप कहें दफा। Amen? Amen. The Bible says Jesus has disarmed. बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने शैतान को निहत्ता कर दिया। Now the only weapon he has is he's waiting for you to make a mistake and then he might remind you your mistake. और अब शैतान के पास कोई और हथियार तो है नहीं, तो वो बस इंतजार करता है कि कब आप कोई गलती करें और फिर वो आपको याद दिलाए कि आपने एक गलती करी है। He knows वो जानता है that if you become strong in your identity, your performance will follow your identity. शैतान जानता है कि जिस दिन आप अपनी पहचान में मजबूत हो गए, आपके कार्य भी उस दिन सिद्ध होने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे। So he constantly tries to attack your identity. इसीलिए वो निरंतर आपकी पहचान पर आक्रमण करता है। You're not worthy. वो तू योग्य ही नहीं है। अच्छा, उस दिन तो बड़ा gospel preach कर रहा था। You were preaching the gospel that day? चर्च में तो बड़ा हाथ खड़ा करके गाता है। Oh, you worship the Lord in the church by raising your hands. See, either you would have heard Satan or you would have heard your family members saying that, but it's coming from the same source. या तो शैतान आपको ये कहता है या आपके रिश्तेदार आपको ये कहते हैं, लेकिन इन बातों का स्रोता शैतान ही है। Why? क्यों? Because he wants to affect your heart and you start looking down on yourself and you're like, God. क्योंकि वो आपके दिल पर एक गंदा, एक गहरा प्रभाव डालना चाहता है, जहां पर आप अपने ऊपर दोष लगाने लगे हैं। So he constantly tries to make you remind your mistake. इसीलिए वो निरंतर आपको आपकी गलतियां याद दिलाता रहता है। But think about this. If this walk that we have with God, it depended on our works. लेकिन आप सोचिए, यदि हमारी ये मसीह यात्रा, ये मसीह चाल हमारे अपने कर्मों पर होती। Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। So, in the early 1900s, the US Army did an experiment. 19वीं सदी में Yeah. अमेरिका की आर्मी ने एक सर्वे किया। So they had flying like drones, but they were like made of hot balloons. You know, they were trying to do the surveillance. उन्होंने फ्लाइंग ड्रोन्स बनाए, वो जो हवा में उड़ते हैं और बलून्स के द्वारा वो उड़ते थे और पूरी जगह का निरीक्षण करते थे। And there were 2-3 soldiers, but somehow there was some mishandling, and there were 3-4 soldiers, and that hot air balloon took them with it, and 3 of them fell down, but then 1 was hanging in the air. और एक बार एक ऐसी घटना हुई कि जब वो उस हॉट बलून में कुछ 4 सिपाही बैठे थे, जब वो ऊपर गए तो उनमें से 3 सिपाही नीचे गिर गए और एक था जो उस हवा के गुब्बारे में था। First 1 fell down, पहले एक गिरा, then after some time 2nd and 3rd. थोड़े टाइम बाद दूसरा और फिर थोड़े टाइम Because they were बाद trying to hold the rope. क्योंकि वो उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश But कर। how long can you hold a rope? लेकिन आप कितनी देर तक एक रस्सी को पकड़ के 1 minute, 2 minutes, 3 minutes at the max.
1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट. And then one fell, the second fell, third fell, they died. फिर एक गिरा, दूसरा, तीसरा और वो तीनों. But this fourth guy लेकिन ये चौथा is व्यक्ति hanging in the air. वो हवा में लटका हुआ. 5 minutes, 5 मिनट, 10 minutes, 10 मिनट हो गए, 15, 15, half an hour, आधा घंटा, 1 hour. 1 घंटा This हो guy गया. is still hanging there. वो व्यक्ति वहीं पर लटका हुआ है. So they prepared a rescue team and they got him down. और फिर उन्होंने एक रेस्क्यू टीम बनाई और उस व्यक्ति को बचा लिया. They asked him, उन्होंने उससे पूछा, how did you manage to hold on to that rope for so long? तुमने ऐसा 1 घंटे तक उस रस्सी को पकड़कर तुम कैसे रह गए? He said, I wasn't holding the rope. The rope got tied into my hand. The rope was holding me. उसने कहा कि मैंने रस्सी को नहीं पकड़ा हुआ था, रस्सी मेरे हाथ में आकर के फंस गई थी, उस रस्सी ने मुझे पकड़ा हुआ था. That's what the gospel is. यही है सुसमाचार. We are not holding on to him. He is holding on to us. हमने उसको नहीं पकड़ा हुआ, उसने हमको पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है. And he says, और वो कहता no है, one can snatch you out of my hands. और वो कहता है कि कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं पाएगा. Amen? हालेलुया, आमेन. You are secure in your father's hand. आप अपने पिता के हाथों में, उसकी बाहों में आप संभले हुए हैं. Okay, let's see the scripture. Hebrews 10:12. इब्रानियों 10 उसके 12 को हम देखेंगे. Hebrews 10:12. Are you alive? इब्रानियों 10 12. Okay. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever. पर यह व्यक्ति अपने एक ही बलिदान के, पापों के एक ही बलिदान के बाद. Okay, so what we see in this passage is there is this man, one specific man. Who is that man? यहां पर हम पढ़ते हैं कि एक ही व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति? Jesus. यीशु. After he had offered, who offered? जिसने बलिदान दिया. किसने दिया? Okay, Jesus offered how many sacrifices? यीशु ने बलिदान दिए. कितने बलिदान? Okay, one sacrifice for how many sins? कितने पापों के लिए? One sacrifice for one sin? एक No, बलिदान. one sacrifice for all the sins, past, present, future. One sacrifice was enough to wipe out the sins of entire humanity. एक बलिदान काफी था सारे पापों को मिटाने के लिए. एक बलिदान एक पाप के लिए नहीं, लेकिन आपके सारे पापों के लिए, इस मनुष्य जाति के सारे पापों को मिटाने के लिए एक ही बलिदान काफी है. Who offered? किसने दिया ये बलिदान? Jesus. यीशु ने. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sins forever. पाप, हमेशा के पाप, हमेशा के लिए. There are some people who preach this doctrine that once you come to Jesus, your sins are forgiven, which you had committed till then. कई लोग हैं जो ऐसी शिक्षाएं देते हैं. जब लोग कलीसिया में आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए हैं अभी तक, जब तक तुमने यीशु को ग्रहण किया तब तक के सारे पाप माफ हो गए. And after that, खुद देख लो. और उसके बाद से now watch for yourself. That's not the gospel. ये सुसमाचार नहीं है. One sacrifice एक बलिदान for sins for. आपके पाप, एक बलिदान आपके पापों के लिए, आपके पापों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए. Forever. हमेशा के लिए. No more sacrifice is needed. और किसी बलिदान की जरूरत नहीं. You don't need to go to courts of heaven. आपको स्वर्गों के उस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं. You don't need to go to Israel. आपको इजराइल जाने की भी Take जरूरत the holy mud, वहां से पवित्र मिट्टी लेने की जरूरत sprinkle it in 7 directions, नहीं. उसको 7 दिशाओं में फेंकने की जरूरत नहीं. then blow the shofar. उसके बाद शोफार बजाने की भी जरूरत And then, नहीं. और फिर might be, हो सकता है your sins are forgiven. कि आपके पाप शायद माफ हो See, जाए. that's what we do ऐसा ही है जो हम करते हैं when we stand in the wrong covenant. जब हम गलत वाचा में खड़े होते हैं. We neglect
the sacrifice of Jesus. हम यीशु के उस बलिदान को, One sacrifice is enough. Say enough. एक बलिदान काफी है, बोलिए काफी है। One sacrifice of Jesus is enough to wipe out the sins of entire humanity. यीशु मसीह का एक बलिदान काफी है कि पूरे मनुष्य जाति के पापों को माफ कर सके। Amen. Amen. So this man, after he had offered one sacrifice, sat down at the right hand of God. पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। And in this passage, the Bible is teaching us about Jesus as a high priest. And high priest was supposed to stand as long as he was offering sacrifices. और यहाँ इब्रानियों में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह को, जहाँ पर एक यीशु मसीह को महायाजक के रूप में दिखाया जा रहा है। और एक महायाजक का काम था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक बलिदान दे रहा है हमेशा खड़ा रहेगा। I think you forgot the first thing. Smile at the preacher. आप लगता है पहली बात भूल गए हैं। मुस्कुराते रहे प्रचारक को देखकर। हर कोई ऐसे गंभीर रूप से बैठा है। If my pastor would have preached this when I was new to church, I would be jumping on the chair. यदि मेरे पास्टर ने ये तब मुझे प्रचार किया होता जब मैं नया नया प्रभु में आया था, तो मैं उछल कूद करके खुशी मना रहा होता। I was rubbing my nose on the floor, making myself Rudolph the reindeer for God to forgive my sins. मैं जमीन पर अपनी नाक रगड़ रगड़ कर रूडोल्फ द रेंडियर बन गया कि प्रभु से माफी मांगता था। Because one preacher came to our church and he said, क्योंकि you know what, I committed a sin and God stopped talking to me and I had to rub my nose on the floor. And then God heard me, brother. क्योंकि एक प्रचारक हमारी कलीसिया आए और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे नाराज हो गए, मैंने एक गलती कर दी थी और मुझे अपनी नाक रगड़नी पड़ी और तब प्रभु को मुझ पर दया आई। And suddenly I got the revelation. और उसी समय मुझे प्रकाशन that God is not talking to me because I have not rubbed my nose enough. और मुझे लगा कि प्रभु मुझसे इसीलिए ही बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अपनी नाक ज्यादा नहीं रगड़ी। So I am waiting when the service will end क्योंकि मुझे नाक रगड़नी। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब सभा खत्म हो ताकि मैं घर जाऊँ and I start rubbing my nose. Guys, I'm not fabricating this story. Before God, I'm saying this is a true story. और मैं आपके सामने कोई बड़ा चढ़ाकर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु के सामने बोल रहा हूँ, ये सच्ची बात है। This fear that my father will leave me. ये डर कि मेरा पिता मुझे छोड़ देगा। Because I messed up. क्योंकि मैंने गलती कर दी। That's what religion teaches us. यही है जो धर्म हमें सिखाता है। You know, when I see my daughters, when they mess up or they get hurt, they call out to their father. They say, "Daddy." और मैं अपनी बेटियों को देखता हूँ, जब भी उनसे कोई गलती होती है या उनको चोट लग जाती है तो वो सबसे पहले मुझे पुकारते हैं, कहते हैं पापा। Amen. And I went home and I'm rubbing my nose and I'm crying and और मैं घर गया, मैं अपनी नाक रगड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ। This anointed, ये अभिषिक्त नाक mixed with tears and and I'm saying, and I'm rubbing my nose, acting as a slave before my father because I never knew who he was. और मैं एक मजदूर की तरह अपने पिता के सामने एक मजदूर बना हुआ था, ये ना जानते हुए कि वो कौन है, वो मेरा पिता है। And so many of us live like that. और हम में से बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं। Oh God, please don't leave me. ओ प्रभु मुझे मत छोड़ना। I might be thinking the angels would be saying in heaven, Jesus, excuse me for saying this, but why is your son acting so stupid when you have said I will never leave you nor forsake you? और मुझे कई बार लगता है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह से, पिता से वो बात करते होंगे और कहते होंगे, माफ करना प्रभु, लेकिन ये आपका बेटा ऐसे बेवकूफों की तरह क्यों बोल रहा है, जबकि आपने अपने वचन में कहा है कि मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। Amen? Amen. Why don't we simply believe what Jesus said? क्यों हम सरल तरीके से विश्वास नहीं कर लेते उन बातों पर जो यीशु ने कही हैं? There is no asterisk mark. I will never leave you nor forsake you.
ऑफर खत्म होने से पहले. You know, it's for eternity. अनंत के लिए परमेश्वर ने कह दिया, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना तुझे कभी छोड़ूंगा, जिसमें कोई शर्तें नहीं है. Can you find an if in this verse? क्या आप इस पूरी आयत में कहीं पर कोई यदि पढ़ सकते हैं Or but? या फिर कोई लेकिन? But the religion has a habit of bringing their but where they shouldn't be bringing. लेकिन धर्म की ये आदत है कि वो अपने लेकिन, किंतु, परंतु उन जगहों पर ले आते हैं जहां पर जरूरत ही नहीं. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Brother, but keep your but to yourself. यीशु मसीह ने कहा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना तुझे कभी छोड़ूंगा. अरे भाई, लेकिन अपने पास रखिए. Yeah. Now this is called a nice interpretation. Okay. इसे कहा जाता है अच्छा अनुवाद. He in himself made this decision without asking you that he will never leave you nor forsake you. He says, I will be with you till the end of the world. उस परमेश्वर ने अपने आप से बिना किसी से पूछे उसने ये वायदा किया है कि मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं और इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता. Amen. Amen. Our salvation is not cheap. It's not so cheap that you can lose it like that. हमारा उद्धार कोई इतना सस्ता नहीं कि आप उसे ऐसे ही खो दें. You know, somebody called me and said, what you're teaching isn't right. किसी ने मुझे कॉल किया और कहा कि जो तुम सिखाते हो वो गलत है. He's like, salvation. उन्होंने कहा उद्धार. I said, brother, what's your definition of salvation? मैंने कहा भाई तुम्हारी क्या परिभाषा है उद्धार की? He said, what's yours? उसने कहा तुम्हारी क्या परिभाषा है? I'm sure he was not sure. So he wanted to know from me. So I said, okay, my definition of salvation is simple, being born of God. मैंने कहा उद्धार की मेरे लिए एक बहुत ही सरल परिभाषा है जिसका मतलब है परमेश्वर से जन्म लेना. Now tell me, मैंने कहा अब ये बताओ, once you are born, एक बार जब तुमने जन्म ले लिया, how can you be unborn? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आधे अधूरे रह गए, तुमने जन्म सही The तरीके day से. Eliana was born, she's born. She cannot be unborn. जिस दिन इलियाना ने जन्म लिया उसने जन्म ले लिया, ऐसा नहीं हुआ कि उसने जन्म नहीं लिया. Salvation is being born from God. I am born from God. I cannot be unborn from God. उद्धार का मतलब है परमेश्वर से जन्म लेना. जिस दिन हमने उद्धार पाया हमने परमेश्वर से जन्म लिया है. Amen. आमेन. The greatest need in the church is that we know who our Heavenly Father is. सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा जो कलीसिया में है उस शिक्षा का नाम वो ये शिक्षा है कि हम जाने प्रभु कौन है. Amen. See, your identity would only come from your Creator. आपकी पहचान सिर्फ आपके रचने वाले के द्वारा ही आएगी. The guy who made Apple, for example, or who made iPhone, he decided, I'm going to call this iPhone. वो व्यक्ति जिसने आईफोन बनाया उसने इस बात का निर्णय लिया कि इस फोन को आईफोन कहा जाएगा. You cannot say, no, I'll call it Oppo. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो इसे ओप्पो ही कहूंगा. No, you cannot put a tag because you didn't create it. आप उस पर कोई मोहर कोई टैग नहीं लगा सकते क्योंकि आपने उसकी रचना नहीं. Only the Creator can reveal the true purpose and identity. सिर्फ रचने वाला सृष्टिकर्ता ही आपको एक आपकी सही पहचान दे सकता है. Amen. Amen. Can I say this? क्या मैं ये Even कह सकता you cannot put a tag on yourself because you did not create yourself. आप खुद भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप अपने सृष्टिकर्ता नहीं हैं. Amen. Okay, let's see the scripture. Should I continue? Okay. Hallelujah. आइए हम इस What आयत other को option do you have? Okay. Colossians 1:12. कुलोसियों 1:12. Are you alert, church?
Okay, remember, smile at the preacher. प्रचारक Giving को thanks देखकर to the हंसते Father who has qualified us. पिता का धन्यवाद करते रहें जिसने हमें योग्य बनाया. Giving thanks to the Father who has qualified us. पिता का धन्यवाद करते रहें क्योंकि उसने हमें योग्य बनाया है. You know, when I came into the ministry, जब मैं सेवकाई में आया, so many times, you know, people looked at me. You. कई बार ऐसा हुआ, लोगों ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम Bible college? गए हो बाइबल कॉलेज? Which गए training? हो? I said, no training. कोई ट्रेनिंग ली है? मैंने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं ली. What's your qualification? तो फिर तुम्हारी योग्यता क्या है? My father is my qualification. मेरा पिता है जो मुझे योग्य बनाता He's है. the one who called me into ministry. Sir, you did not? I don't even know who you are. आपने मुझे सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, मैं तो जानता भी नहीं कि आप कौन हैं. So your opinion don't matter. तो आपकी राय इस बारे में कोई मायने भी नहीं रखती. Although I'll just smile at your face हालांकि मैं सिर्फ आपको देखकर मुस्कुराऊंगा and I'll not let you know that I've rejected your opinion. और मैं आपको ये बताऊंगा भी नहीं कि जो आपकी राय है मेरे बारे में उसका मैंने इनकार कर Because दिया. your opinion don't matter. क्योंकि आपकी राय की कोई जरूरत ही नहीं है. Because the opinion of my heavenly Father matters. क्योंकि मेरे पिता की जो राय है मेरे बारे में वो जरूरी है. He called me, He chose me, He called me into ministry. उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे चुना और उसने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया. So what's my qualification? तो मेरी योग्यता क्या है? My heavenly Father is my मेरा qualification. स्वर्गीय पिता मेरी योग्यता है. Who said you need to have Bible college to have a ministry? Now, please don't misunderstand me. I'm not against formal education. Get trained. It's amazing. But what I'm saying is don't limit yourself that if I don't have this, I cannot have ministry. मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाइबल कॉलेज की ज़रूरत नहीं. ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रशिक्षण लें, पढ़ें, आगे बढ़ें. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि आप अपने आप को सीमित ना करें. आप ये ना सोचें कि यदि मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया तो मैं सेवकाई करने के योग्य नहीं. Your Father has qualified you. आपके पिता ने आपको योग्य बनाया है. Who says you need to have an MBA degree to start a business? किसने कहा कि आपको एक व्यवसाय शुरू करने के लिए MBA की डिग्री चाहिए? If you have MBA, praise God. यदि आपके पास MBA है तो अच्छी बात है. Don't get mad at me. मुझसे नाराज ना हो. But what I'm saying is, लेकिन मैं क्या कहना चाह you रहा हूँ don't need MBA to start a business. कि आपको कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए MBA की जरूरत नहीं. More than degree, we need grace. किसी भी शिक्षा डिग्री से ज्यादा जरूरी है अनुग्रह की. Amen. Amen. Grace will take you where degrees cannot take you. अनुग्रह आपको उन ऊंचाइयों पर, उन जगहों पर लेकर जाएगा जहां पर आपका ज्ञान आपको लेकर नहीं जाएगा. Amen. Amen. Because you will give all the glory to Him and not to your degree. क्योंकि जब अनुग्रह से आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो आप सारी महिमा परमेश्वर को देंगे अपनी पढ़ाई लिखाई. Brother, actually, I was so hardworking. I went to Stanford, and then I did my PhD. I'll say for us, him. वरना लोग आते कहते हैं भाई तुम्हें नहीं पता, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई स्टैनफोर्ड से करी है और मैं बहुत ही मेहनती था इसीलिए ऐसा हुआ. No Stanford. हम कहते हैं कोई स्टैनफोर्ड नहीं, कुछ नहीं. The grace of God. प्रभु का अनुग्रह. Amen. Amen. And it's simple and it's all that we need. और ये बहुत साधारण है, बहुत सरल है, इसी की हमको जरूरत है. Amen. Amen. One encounter with favor can take you where your lifetime of labor cannot take you. उस अनुग्रह और उस तरफदारी का एक साक्षात्कार आपको वहां ले जाएगा जहां पर आपकी जिंदगी भर की मेहनत आपको लेकर नहीं जा सकती. Amen. Amen. So praise God for degrees. तो प्रभु का धन्यवाद हो सारी डिग्रियों के लिए. Okay. I keep saying this so some people think that I topped my software engineering batch. So just by the way, just मैं आप putting it there so that तो लोग कहते हैं कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, लेकिन आपको बता दूं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया था. But लेकिन I don't depend on that. लेकिन That's a good but. ये एक अच्छा वाला लेकिन है. लेकिन मैं अपनी उस डिग्री पर निर्भर नहीं करता. Apostle Paul says our sufficiency comes from God. प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारी सिद्धता परमेश्वर की ओर से आती है. Amen. All right. Are you ready, church? आप तैयार हैं?
We'll read it further. Hebrews 10, 12, 13, 10, 13. Yeah. इब्रानियों 10:13 को हम देखेंगे. Say grace. बोलिए अनुग्रह. You need grace because here we preach for a long time. आपको अनुग्रह की जरूरत है क्योंकि यहाँ हम थोड़ा लंबा प्रचार करते हैं. Okay. He sat down at the right hand of God. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. वो परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की चौकी बन जाएं. Now Jesus is in heaven, यीशु मसीह स्वर्ग में है, sitting at the right hand of the Father, पिता के दाहिने ओर बैठे हैं. waiting. What is he doing? इंतजार कर रहा है. He's waiting वो इंतजार for कर his रहा है enemies to become his footstool. कि उसके दुश्मन उसके पैर की चौकी बन जाए. Why is he waiting? क्यों वो इंतजार कर रहा So है? that his body will rise up and walk in dominion and authority. ताकि उसकी देह उसकी कलीसिया उठ खड़ी हो और प्रभावशाली हो और सामर्थी रूप से चले फिरे. Amen? Amen. So you are going to crush that sickness in Jesus' name. तो आप उस बीमारी को नाश करेंगे यीशु के नाम में. Amen? You're going to overcome poverty. आप गरीबी पर जय पाएंगे. You're going to overcome depression and anxiety. आप निराशा के ऊपर जय पाएंगे. Jesus is waiting. यीशु मसीह इंतजार कर. Okay, next verse. अगली आयत. Are you ready? तैयार हैं आप? For by one offering he has perfected. क्योंकि एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया. Okay, now how many people understand tense? कितने लोग Past tense, present tense, future tense. काल समझते हैं? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल. Tell me the tense here. आप बताइए यहाँ पे कौन सा काल है? He will perfect those. क्या वो उनको सिद्ध करेगा? He has perfected. उसने सिद्ध कर दिया है. Wait a minute. Jesus. एक मिनट. Oh, okay, auntie, just relax. Okay. So, okay. Okay, so, Jesus, your word is saying that I am perfected. यीशु मसीह आपका वचन कह रहा है कि मैं सिद्ध हूं. I still have so many weaknesses. मुझ में तो अभी भी बहुत सी कमियां हैं. We are perfected in His eyes. हम उसकी नजरों में हमेशा के लिए सिद्ध हो गए हैं. Not in our performance. अपने कार्यों में नहीं. Can I say it again? क्या मैं फिर से बोलूं? We are perfected in God's eyes. हम परमेश्वर की नजरों में सिद्ध हो चुके हैं. Amen? Amen. If you can just get it. यदि आप सिर्फ इस बात को समझ जाएं. He has perfected us. उसने हमें सिद्ध कर दिया है. That means when you go to pray, इसका मतलब जब आप प्रार्थना करने you जाएं, can pray with all boldness. आप पूरे हियाव से प्रार्थना कर सकते हैं. Because my Father sees no flaw in me. Your Father sees no flaw in you. क्योंकि मेरा पिता मुझ में कोई कमी नहीं देखता. आपका पिता आप में कोई कमी नहीं देखता. Now, yes, what auntie is saying, they are being sanctified. हाँ, यहाँ बाइबल कहती है कि वो सिद्ध पवित्र किए जा रहे हैं. Okay, now the word sanctified simply means separated. The more and more we grow into this awareness of our identity, the more strong we'll become in the fact that we are already perfected. जितना ज्यादा हम अपनी पहचान में मजबूत और स्थिर होते जाएंगे, उतना we'll be established in what Jesus has done. उतना ही हम इस बात में स्थिर होते जाएंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है. Amen? So can I tell you a very easy reason? Can I tell you a very easy way to overcome condemnation? क्या मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता सकता हूं जिससे आप इस दोष भावना से ऊपर उठ सकते हैं? Quit taking inventory of what's wrong with you. आप बार-बार ये सोचना बंद कर दें कि मुझ में क्या दिक्कत है. Amen? Amen. See, as I said, if I constantly think about
I can never walk with God if constantly I'm so absorbed on what I'm doing. मैं परमेश्वर के साथ सिद्धता से नहीं चल सकता यदि मैं निरंतर ये सोचता रहूं, यदि मैं बार बार ये सोचता रहूं कि मैं क्या कर रहा हूं. We can never overcome condemnation by performance. Write it down if you can write it down. It's the most important thing I'm saying. We can never overcome condemnation by performance. यदि आप लिख सकते हैं तो लिख लें कि हम इस दोष भावना पर जय नहीं पा सकते जब तक हम सिर्फ अपने कार्यों पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं. If you think the day I'm going to perform good, I'm going to feel good, you're deceived. यदि आपको लगता है कि जिस दिन मैं कुछ अच्छा करूंगा उस दिन मुझे अच्छा लगेगा तो आप धोखा खाएंगे. Because as I said, someday, somehow you're going to miss somewhere. जैसा मैंने कहा कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन किसी ना किसी तरीके से आप गलती करेंगे. And if your faith is in your performance, और यदि आपका विश्वास आपके अपने कर्मों पर है, sooner or later the enemy will bring condemnation. आज नहीं तो कल शैतान आपके जीवन में दोष की भावना लेकर आएगा. The only way to overcome condemnation, write it down please, the only way to overcome condemnation is to stand behind the perfect work of Jesus. और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि दोष भावना के ऊपर जय पाने का यही तरीका है कि आप यीशु मसीह के जो उसने कर दिया है आप उसके पीछे खड़े रहें. When Satan comes and says names to you, you say, talk to my dad because he sees no flaws in me. जब शैतान आए और आप पर दोष लगाए तो आप उसे कहिए कि मेरे पिता से बात कर क्योंकि वो मुझ में कोई दोष नहीं देखता. Amen. Amen. Now yes, Holy Spirit will obviously teach us right attitudes when we are wrong. He will teach us, hey son, don't do that. Every parent would. But what I'm saying is the way he looks at us will never change. हाँ, जब हमसे गलती होती है तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि ये सही तरीका नहीं, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है. लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जिस तरीके से परमेश्वर हमें देखता है, जो नज़रिया उसका है कि वो हम में कोई कमी नहीं देखता, वो कभी नहीं बदलेगा. For by one sacrifice. एक बलिदान से. The enemy will keep reminding you, you haven't done enough. शैतान आपको हमेशा ये बोलता रहेगा कि तूने काफी नहीं करा. Yes, the more we love God, His sacrifice makes us sacrificial. We become sacrificial in our love. But what I'm saying is we don't stand on our sacrifice. हाँ, हम भी बलिदान देते हैं. जब हम प्रभु में बढ़ते रहते हैं, हमारे बहुत से कार्य ऐसे हो जाते हैं जो हम बलिदान पूर्वक करते हैं. So many people say, Pastor, you're saying we are righteous, but what about when I do stupid stuff? पास्टर आप तो कहते हैं कि हम धर्मी जन हैं, लेकिन तब क्या जब हम कुछ गलतियां कर देते हैं, बेवकूफियां करते हैं? When you do stupid stuff, जब आप अपने जीवन में बेवकूफियां करते हैं, you are righteous stupid. आप एक धर्मी बेवकूफ हैं. But you are still righteous. लेकिन आप फिर भी धर्मी जन हैं. You are a righteous who is doing stupid things. आप एक धर्मी व्यक्ति हैं जो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं. But that does not change who you are. लेकिन आपकी बेवकूफियों से आपकी पहचान पर फर्क नहीं पड़ता. You are still righteous. आप अभी भी धर्मी जन. You are still right in God's eyes. आप आज भी परमेश्वर की आंखों में सिद्ध हैं. See, Noah was called a righteous man. नूह को परमेश्वर ने सिद्ध व्यक्ति बोला. Right? That righteous man got drunk and got naked. वो धर्मी जन ने दारू पी और नंगा हो गया. Wow. वाह. But the Bible never calls him unrighteous ones. लेकिन बाइबल फिर भी उसको कभी भी अधर्मी नहीं कहती. If you're thinking, Noah, how can Noah do that? यदि आप सोचे नूह इसने ऐसा कैसे कर दिया? We have acted like Noah in different areas of our life. हम सब ने कभी ना कभी नूह की तरह व्यवहार किया है अपने जीवन में. But once you are made, not that you became, once you are made the righteousness of God in Christ Jesus, that is everlasting. लेकिन एक बार जब आपको परमेश्वर ने धर्मी जन बना दिया, ऐसा नहीं कि आप खुद से अपने कर्मों से बने, आपको और मुझको धर्मी बना दिया गया, उसको कोई नहीं बदल सकता. Amen? And as you keep growing in the Lord, you will start doing less and less stupid things. प्रभु में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप ऐसे बेवकूफी भरे काम कम करते जाएंगे. But still your identity will be the same. लेकिन फिर भी आपकी पहचान कभी नहीं बदलेगी. You will still be righteous. आप
फिर भी धर्मी जन who रहेंगे now does less stupid things. जो अब थोड़ी कम बेवकूफियां करता है। Are you guys getting what I'm saying? आप लोग समझ रहे हैं The मैं क्या day कह रहा my हूं? daughter was born, she is my daughter. जिस दिन मेरी बेटी ने जन्म लिया वो मेरी बेटी है। Then as she grows, she starts singing and dancing and she starts sketching and all of that. But that does not change her identity. I don't say now she was my daughter, now she's a dancer. अब वो No, बड़ी she's हो, my daughter who can dance. अब जब वो बड़ी हो गई तो वो कभी गाने गाती है, डांस करती है, पेंटिंग करती है, उससे उसकी पहचान पर फर्क नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि पहले वो मेरी बेटी थी अब वो एक डांसर है। मैं कहता हूं कि वो मेरी बेटी है जो कि डांस करती है। The day you were born from God, you had one eternal identity, and that is you are a son. जिस दिन आपने परमेश्वर से जन्म लिया आपकी एक अनंत की पहचान है और वो ये है कि आप उसके बेटे और बेटी हैं। And no matter what you do, और फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करें। you shouldn't do stupid things, obviously. आपको बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए। But what I'm saying is that does not change who you are. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किसी भी गलती या किसी भी बेवकूफ़ी की वजह से आपकी पहचान नहीं बदलती। Your who does not come from your do. Your do comes from your who. आपकी पहचान आपके कर्मों से नहीं होती लेकिन आपके कर्म आपके पहचान की वजह से होते हैं। Amen. Can we stand up, please? आइए हम सब Worship खड़े team, हो can you जाएं। come? Hallelujah. So, if today you've been feeling condemned because you mess up, यदि आज आपको अपने मन में एक दोष की भावना लगती है क्योंकि आपने कुछ गलतियां कर दी and you're feeling condemned, और आपको आपके मन में दोष की भावना लगती you know, है। I had a Christian friend and I asked him, do you read the word? और मेरा एक मसीही दोस्त, मैंने उससे पूछा क्या तुम बाइबल पढ़ते हो? He said, no. उसने कहा नहीं। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, I'm not worthy to read the word. उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं वचन पढूं। See, the enemy attacked in his identity. देखिए शैतान ने यहाँ पर उसकी पहचान पर आक्रमण किया ताकि वो कभी वचन ना पढ़ सके। You are worthy. आप योग्य हैं। So worthy that God saw you worthy enough that he can make his abode in you. आप योग्य हैं और आप इतने योग्य हैं कि परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो अपना घर आप में बनाए। Amen. We are not perfect people. हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं We are perfected people. लेकिन हम सिद्ध किए हुए लोग हैं। We played no part in it. हमारा इसमें कोई कर्म नहीं है। This man, ये व्यक्ति यीशु, this man ये व्यक्ति has made you righteous. ये व्यक्ति यीशु, इसने आपको और मुझे धर्मी ठहराया है। And I just pray today that he will restore this image in your heart that you will see God as a loving father. और मेरी ये प्रार्थना है कि आज परमेश्वर की वो छवि आपके मन में फिर से पैदा हो कि वो एक प्रेमी पिता है। Amen. Amen. Your worth comes from your birth. आपकी योग्यता आपके जन्म लेने से आई है। The day you were born in God's house, जिस दिन आपने परमेश्वर के घराने में जन्म लिया, you are a royalty. आप राजघराने के हैं। Amen. Amen. You are royalty. आप You're राजघराने God's के people. हैं। आप परमेश्वर के A लोग हैं। chosen generation. एक चुनी हुई पीढ़ी, A royal priesthood. एक राजकीय याजक, Holy nation. एक पवित्र देश, God's own special people. परमेश्वर के अपने खास लोग। And as I said last time, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, because I'm special क्योंकि मैं खास हूँ and you are special, और आप खास हैं, because God calls us special, क्योंकि परमेश्वर हमें खास लोग बोलता है, we get special treatment. हमें एक खास तरीके का व्यवहार मिलता है That's called favor. जिसे तरफदारी कहते हैं। Favor is preferential treatment. तरफदारी का मतलब है कि एक खास तरीके का व्यवहार। That means what it takes others years is going to happen quickly. Things will be accelerated in the name of Jesus. इसका मतलब कि वो बातें जिनको हासिल करने के लिए लोगों को सालों लग गए, हमें वो पल भर में मिल जाएगी उस तरफदारी के कारण। Amen. Amen.
You have seen some people get VIP entry, you know, to some places. आप जानते हैं कई बड़ी बड़ी जगहों पर कुछ लोगों को एक खास तरीके का की एंट्री मिलती है. Or a very important person is having a meeting and then somebody comes who is special in this person's sight. He gets access. और जब किसी खास व्यक्ति की कोई सभा चल रही हो और उस खास व्यक्ति का कोई खास दोस्त या कोई भी जन आए तो उसको एक अलग एंट्री मिलती है. So many people like, Pastor, God does not hear my prayer. कई लोग आते हैं कहते हैं पास्टर प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता. Change the covenant. वाचा को बदल दीजिए. Get on the right side of the cross. क्रूस के सही तरफ आ जाइए. Start seeing God as your father. परमेश्वर को अपना पिता देखना शुरू करें. And you're special. और आप खास लोग हैं. Amen. Amen. So you have VIP entry. आप सबके पास VIP एंट्री है. Come on, for a moment, just close your eyes, lift up your hands. आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं. Father, in the name of Jesus. पिता प्रभु यीशु के नाम में. Lord, we come against every condemning thought that the enemy is sending to their heart. प्रभु हम हर एक उस दोष लगाने वाले भावना के खिलाफ आते हैं जो शैतान देता है. Father, in Jesus' name. पिता यीशु के नाम में. Lord, we speak. प्रभु हम बोलते हैं. Your approval over them. तेरी सहमति को उनके जीवन में. Thank you, Father, that all your children are perfected in your sight. पिता धन्यवाद करते हैं कि तेरे सारे बच्चे तेरी नजर में सिद्ध हैं. Washed by the blood. तेरे लहू से धोए हुए हैं. By one sacrifice they have been made perfected, Lord. एक ही बलिदान के कारण वो सब सिद्ध किए गए हैं. And who can condemn when God justifies? और कौन है जो दोष लगा सकता है उस पर जिसे परमेश्वर ने सिद्ध किया. And Lord, you are speaking over them that I approve you. I have qualified you. I have called you. I have chosen you. I have given you a new name. और प्रभु तू उनके जीवन के लिए कहता है कि मैंने तुम्हें सिद्ध किया है, मैंने तुम्हें योग्य किया है, मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें एक नया नाम दिया है. I have washed you. मैंने तुम्हें धो दिया with है my blood. अपने लहू से. I have called you mine. मैंने तुम्हें अपना बुलाया है. So Father, right now, Holy Spirit, we pray that you would break those arrows of condemnation. पिता हम इसी समय प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि तू उन दोष भावना के उन तीरों को इसी समय कुचल दे प्रभु. Like when prodigal son came back, he said, I'm not worthy to be called your son. Make me a hired servant. प्रभु जैसे वो उड़ाऊ पुत्र जब घर आया और उसने कहा कि मैं तेरा बेटा होने के योग्य नहीं, तू मुझे अपने एक दास की तरह ही रख ले. But the father said, my son has come back home. लेकिन पिता ने कहा कि मेरा बेटा घर वापस आया है. Once a son, always a son. जो एक बार बेटा बन गया वो हमेशा के लिए अनंत के लिए बेटा है. Come on. Just talk to him right now. उससे बात कीजिए. Say, Holy Spirit, reveal to me how the Father sees me. आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे दर्शा, मुझे बतला कि पिता कैसे मुझे देखता है. Just let go of every condemning voice that has been telling you that you are not enough, you are not worthy, that you are a mistake. हर एक उस दोष भावना जो आपको ये बोलती है कि आप योग्य नहीं, आप काफी नहीं, ऐसी किसी भी बातों को आप ना सुने. You're worthy. आप योग्य हैं. You're worthy. आप योग्य हैं. The blood has made you worthy. परमेश्वर के लहू ने आपको योग्य ठहराया है. The blood of the Lamb of God has made you worthy. परमेश्वर के मेमने के लहू ने आपको योग्य ठहराया है. Come on, say this after me. I am worthy. मेरे साथ ही कहें, मैं योग्य हूँ.
not because of my performance, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, but because of the blood of Jesus. लेकिन यीशु के लहू के द्वारा। I'm washed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू के द्वारा धोया गया हूँ। I'm washed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से धोया गया। I am born of God. मैंने परमेश्वर से जन्म लिया है। I am accepted in His sight. मैं उसकी नजरों में ग्रहण किया गया। I am a beloved in my Father's eyes. अपने पिता की आंखों में मैं उसकी आंखों का तारा हूँ। I am righteous. मैं धर्मी हूँ। I am chosen. मैं चुना हुआ हूँ। I am accepted. मैं ग्रहण किया गया हूँ। My Father will never leave me nor forsake me. मेरा पिता मुझे कभी न त्यागेगा और कभी न छोड़ेगा। Come on, Lord, right now I pray, Father, that you will remove every kind of condemnation from their hearts, Lord. पिता, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ कि तू इन लोगों के दिलों से हर तरीके की दोष भावना को मिटा रहा है। You're valuable. आप कीमती हैं। You're loved. आपसे प्रेम किया गया है। And you will always be loved. और आपसे हमेशा प्रेम किया जाएगा। There will never be a moment where God will stop loving you. ऐसा एक भी क्षण ना होगा जब परमेश्वर आपसे प्रेम ना करेगा। Come on, if you have felt unworthy, यदि आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि आप अयोग्य हैं, I want you to see yourself as that prodigal son coming back home and see the father removing those rags. That's the false identity the world has given you, Satan has given you, and the father giving you the best robe. That's the robe of righteousness. मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इस समय उस उड़ाऊ पुत्र के नाय देखें जो जब वापस आया तो उसके पिता ने उसके जो चिथड़े हुए कपड़े उसने पहने हुए थे, जो दिखाता है वो पहचान जो ये दुनिया आपको देती है, वो उन कपड़ों को हटाकर एक धार्मिकता का चोगा आपको पहनाता है जो कि आपकी असली पहचान है। Come on, come on, come on. See yourself being washed by the blood. देखिए अपने आप को कि आप यीशु के लहू के द्वारा धोए जा रहे हैं। And the Father giving you that robe of righteousness. और पिता आपको धार्मिकता का वो वस्त्र दे रहा है। Putting a ring on your finger. आपकी उंगली पर आपको वो अंगूठी पहना रहा है। And giving you sandals. और आपको आपके पैरों के लिए जूते। The robe is my identity. वो कपड़ा मेरी पहचान है। My identity comes first. मेरी पहचान सबसे पहले है। The ring represents authority. जो अंगूठी है वो दर्शाती है अधिकार को। My authority is hidden in my identity. मेरा अधिकार मेरी पहचान में छिपा हुआ है। And the sandals represent the walk. और जो जूते हैं वो दर्शाता है मेरे इस चाल को, इस मसीही चाल And को। because of now this authority as I have in a son of God, I can walk as a son of God. तो अब जो ये अधिकार मेरे पास है, उस अधिकार में मैं परमेश्वर के पुत्र की पहचान में मैं इस चाल को चलता And हूँ। I pray that the Father will restore that identity in your heart. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी इस पहचान को, इस तस्वीर को, इस छवि को फिर से आपके दिल में That you will see बनाएगा। yourself as a loved son or daughter. कि आप अपने आप को एक प्रेमी बेटे और बेटी की तरह देखेंगे।